Hello friends, this is CA Naresh Lakhani and today I'm going to talk about things which you really need to pay attention while messaging. It may be a personal message or for business use. As we all know that messaging, or I would call it WhatsApp messaging, which has become to a very large extent, synonym with messaging, is used for many things, personal things. We have family groups, we have friend groups, we have professional groups. We also use it for business marketing and attracting new customers. Also, as I mentioned, it's for social purposes. For example, I'm part of some social organization and I may make groups to use it. Also, messaging is used for security checks like OTP. Usually, SMSs are used there. And also, government and non-governmental organizations use it as well. Many companies have now these days, they send text messages for their customers or to confirm their orders. Also, communication between colleagues, people, or customers. So we all know it. SMS or WhatsApp messaging has become part of our DNA or day-to-day use to that extent that we cannot, avoid it. So we must pay attention to a few things. So the first thing I would say is at least the security thing. Security thing is very important. So you must pay attention to the link. Usually the web link, in the messages, do you need to click it or not? That is one of the most important thing I would start with to begin with. So another important thing is when you send message, message may be relevant for a particular set of audience. On the other hand, it may be a nuisance also. If you overdo it, it may become nuisance, and even sometime relevant important messages go actually missed, and we may miss those as well. So a good message should clearly state what to do, how to do, when to do, and what would be the result. Again, I mean, each and everything cannot be included in every message, but in general, आपको आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं करने के लिए, किसी को कैसे करना है, कब तक करना है, और कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको यूजुअली एक मैसेज में आपको ट्राई टू इंक्लूड इट. और मैसेज आपको मेक श्योर करना है दैट इट इज़ मोटिवेटिंग. इट इज़ नॉट लाइक कि बड़ा कैजुअल सा है और किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा और बंदा पढ़ने को इंटरेस्टेड नहीं है. अब बेनिफिट्स ऑफ मैसेजिंग, अब मैनी पीपल हैव बीन यूजिंग ईमेल्स, लेकिन अब काफ़ी लोग मैसेजिंग पे आ गए हैं, स्पेशली पर्सनल एंड बिजनेस एज वेल. तो उसमें कुछ खासियतें हैं जो ईमेल में नहीं हैं. सो द फर्स्ट इज sharing of files and provides a written document. So again, file sharing communication has become much faster when it comes to WhatsApp messaging or messaging, which was not there. But email is like easy to share as well, and it provides written record communication for business setting. Retrieval is easier in emails. Also, the main difference between email and messaging is that speed is very high when it comes to messaging or WhatsApp messaging. And also, messages don't go to junk. Usually it is very quite possible that what's emails go to junk and people don't read them, but it is happening to messages as well now these days. So again, as I mentioned, rapid response message में बहुत जल्दी response आता है, immediately बंदा पढ़ लेता है. email usually इतनी जल्दी नहीं पढ़ता. cost काफ़ी कम है, lower है. most of the messengers are free these days. all you need to have is data or fast conversation. आपस में जो immediate back and forth conversation is quite faster as far as WhatsApp is concerned. अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं मैसेजिंग की या व्हाट्सएप मैसेजेस की, अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं. आप बैठे हुए किसी मीटिंग में, किसी ऑफिस में कोई जरूरी काम कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन मैसेज बज जाता है. लोग अपने मैसेजेस की तरफ देख रहे होते हैं, मीटिंग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने काम को अटेंशन नहीं कर रहे होते. प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की काफ़ी कम हो जाती है, सबको मालूम है. और डिसरिगार्ड, कई बार क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है आप भेज देते हो
व्हाट्सएप मैसेज में फॉर एग्जांपल आप किसी ईमेल की फ़ोटो खींच के भेज देते हो, तो क्वाइट पॉसिबल है। और कई बार फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ चल रही हैं और बंदा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और बहुत ज़्यादा जब मैसेजेस आते हैं तो बंदा ओवरऑल वैसे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। और अगर कोई बहुत बड़े इश्यूज है, कोई कन्फ्लिक्ट है, तो आई वुड से ईमेल, स्पेशली इन बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लीज यूज ईमेल्स विज़ व्हाट्सएप और मैसेजिंग। अब एक अच्छे मैसेज में क्या क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं इफेक्टिव होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेटर की। आप कोई भी बंदा कुछ भी लिख देगा तो पीपल आर ऑल्सो इंटेलिजेंट दीज डेज, दे डोंट बिलीव यू। एज मच एज पॉसिबल एविडेंस प्रेजेंट करो, अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसका एविडेंस प्रेजेंट कर दो। ऑल्सो द ऑडियंस इन द इनिशियल में अगर एग्री कर रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो वन साइडेड मैसेज चल सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एग्री नहीं कर रही है, ऑलरेडी किसी चीज़ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दोनों साइड के व्यू आप रख सकते हैं। उसके बाद है इफेक्टिवली यूज करने के लिए और क्या करना है आपको। एक इंस्टेंट मैसेजिंग कर्टसी होती है, हेलो हाय से शुरू करो, हो सकता नाम मिली तो कोई बात नहीं है। इंग्लिश यू कैन राइट इनफॉर्मल, यू डोंट नीड टू बी वेरी फॉर्मल इन मैसेजिंग। और अगर आप बिजी चल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अवे है, बिजी है, स्टेटस में आप डाल दो प्लीज। Again, confidential information, client information, I would suggest please don't do it on WhatsApp or messaging, क्योंकि उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो सकती है। दूसरा बंदा जो है वो किसी और को फॉरवर्ड कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा। अगेन, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स मैसेज मत भेजो। मल्टीपल कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा लंबी चल रही है, अवॉइड करो। और सिक्योरिटी गाइडलाइंस अगर आप कंपनी की तरफ से करें तो प्लीज़ उसको आप जो है अवॉइड करो। अब और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं आपके गुड मैसेज के, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो कहीं ना कहीं क्लियर लिखा हो, मैसेज साफ सुथरा सिंपल हो, बहुत बड़ा ना हो, इंग्लिश भी सिंपल ही हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिख रहे हैं तो लोगों को समझ नहीं आएगी, या जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं आप उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जो बंदे को समझ आती हो, उस बंदे के हिसाब से लिखो, अपने हिसाब से मत लिखो। इफ आई एम गुड इन इंग्लिश बट द अदर पर्सन आई बिलीव डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, तो आई वुड रादर प्रेफर कि हिंदी में ही लिखूं, या कहीं कंफर्ट लेवल अगर हिंदी में, अगर उसको आ रहा था कंफर्ट लेवल हिंदी में लिखे। उसके बाद है दूसरे बंदे की कैपेबिलिटी भी देखें। अगेन जैसे मैंने बोला कि वो कैसा फील करता है, वो किस में कंफर्टेबल है लैंग्वेज में। जो भी चीज़ है आप एक्यूरेट लिखो, सच लिखोगी, और गलत मत लिखो, और टाइमली लिखो। आप पुरानी चीज़ आज लिखेंगे या उसमें फैक्ट्स गलत होंगे या करंट चीज़ें नहीं होंगी या अपडेटेड मैसेज नहीं होगा, तो it uses its value and you also lose your credibility in the future. And please remember, foul language मत ही लिखो, vulgar में language मत लिखो, क्योंकि that actually reflects your personality, how good you write in message or how neatly and how nicely you write. It is a reflection of your personality, वो दूसरे बंदे की personality reflect नहीं कर रही, आपकी personality। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपीलिंग हो, अट्रैक्टिव हो, मैनेजेबल हो, मतलब बंदा उसको समझ सके, कैन बी हैंडल बाय कम्युनिकेटर एंड विद इन लिमिट्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। जितना टाइम एंड रिसोर्स है उसके हिसाब से उसको आप फास्ट और क्रिस्प लिखो। उसके अलावा और क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं मैसेजिंग में, रिपीट की आइडियाज़, अगर आपको लगता है कोई खास चीज़ है तो उसको आप रिपीट भी कर सकते हो। उसके बाद आप कंपेयर, दो आइडियाज हैं, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कोई 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 कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ अपना अपना मैसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख दूँ, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, आई कैन राइट दिस। एंड अगेन बोथ साइड व्यू और वन साइड व्यू चल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सामने वाला बंदा कैसे है। और एक मैसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे मत डालो, फ्यू आइडियाज़, वन आइडिया एट ए टाइम। और जो भी लिखो मैसेज, नॉर्मली फॉरवर्ड मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बी योरसेल्फ। अगर आप फॉरवर्ड मैसेज भी कर रहे हैं तो आप ये लेके चलो कि आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं। आंखें बंद करके लोगों को व्हाट्सएप मैसेज मत करो। एंड ऑल्सो मैं सबको बोलता हूँ
कि कहीं ना कहीं जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप फॉरवर्ड कर रहे हो, उसमें आप बिलीव करते हो। और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों को मत डालो। अगर बहुत ज़्यादा मैसेज डालोगे तो लोग आपको जंक स्पैम में डाल देंगे और कोई पढ़ेगा भी नहीं। कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो आपकी कम्युनिकेशन, उसमें अवॉइड करना, मीन किसी को बुरा भला बोलने की कोशिश करो मत करो, क्योंकि दूसरा बंदा कई बार उसको ऑफेंसिव भी ले सकता है। सो दिस वाज आई विल जस्ट समराइज क्विकली ऑन मैसेजिंग, क्या मैसेजिंग में होना चाहिए, क्या एटिकेट्स होना चाहिए, और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या आपको होना चाहिए। तो एक तो सिंपल लैंग्वेज लिखो, इनफॉर्मल लैंग्वेज चल जाएगी, मतलब बहुत फ्लावरी लैंग्वेज में तो शेक्सपियन लैंग्वेज मत लिखो, या शशि तरूर वाली लैंग्वेज मत लिखो। दूसरों को रिस्पेक्ट पोलाइट से लिखो। अच्छा सा एक अपना प्रोफाइल डीपी लगाओ, एक डिसेंट सा। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ मैसेजिंग और मैसेजेस में ये नहीं है कि आप सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स और इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आप मैसेजिंग को यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट यूज़ इट। और अगेन, बैड और फाउल लैंग्वेज आप मत यूज़ करो, क्योंकि आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और जल्दी मिलूंगा किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय।